Hello and welcome to Manual Education. In today's session, we will be seeing a detailed paper solution of NCHM CT JEE 2021. So guys, before we get started, if you're preparing for NCHM CTZ and you're trying to target top IHM colleges, then you can contact us. We provide live coaching as well as classroom coaching, books, shortcut tricks to solve your questions faster. We also conduct separate doubt sessions for solving all your doubts. You get access to recorded videos. There are topic tests, mock tests, and we have an ocean of over 10,000 plus questions. Not just this, you also are connected to your mentors on your WhatsApp group where you can ask all your queries to them. So guys, what are you waiting for? You can book your seats with us. For online and live coaching, you can call on 8828581454, and for classroom coaching, we have our centers at Dadar, Borivali and Vasai. So you can contact on these numbers and make sure that you visit our centers. For any more information, you can visit our website. सो गाइज़, आज हम डिटेल्ड पेपर सोल्यूशन देखेंगे. आई नो कि पेपर सोल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल है, बट आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एंड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मिलेगा. यहाँ पे वी टीच यू शॉर्टकट ट्रिक्स, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में ना हमारे पास टाइम नहीं होता है. वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स. इससे ज़्यादा टाइम तो हम ले ही नहीं सकते. तो इतने कम समय में हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, टॉपर्स का अप्रोच क्या होता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये हम देखेंगे हमारे आज के वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर. दिस इज एन एरर डिटेक्शन क्वेश्चन. सो द इंडियन रेडियो which was previously controlled by the British rulers is free now from the narrow vested interests. तो यहाँ पे देखिए, मोस्टली ना गाइज इट्स ऑलवेज बेटर अगर आप बस क्वेश्चन पढ़ के देखो. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रही है. जैसे कि इफ आई रीड दिस, प्रीवियसली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स इज फ्री नाउ फ्रॉम द. देखो इज फ्री नाउ फ्रॉम द में कुछ तो गड़बड़ लग रही है, राइट. व्हाट इज द गड़बड़? इज नाउ फ्री फ्रॉम द होना चाहिए. सो द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज रॉन्ग. दैट इज वाई द एरर इज इन पार्ट सी. Moving ahead with question second, identify the part which contains an error. A lot of travel delay is caused due to the inefficiency and lack of good management on behalf of the railways. Behalf of the railways मतलब रेलवे के behalf पे कोई ट्रैवल डिले कर रहा है? नहीं. अभी अगर ट्रैवल डिले कर रहा है तो वो रेलवे ही कर रहा है, तो यहाँ पे behalf नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा on part of railway. Okay, so the error is in part D. And this should not be behalf, it should be part of the railways. Next, identify the error. So देखिए एरर डिटेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं. After having failed to revive a flagging Nano, Tata Motors has demanded afresh last week that the enviable stops be extended to other car models it plans to manufacture from Sanat. देखिए यहाँ पे आफ्टर हैविंग फेल्ड टू रिवाइव अ फ्लैगिंग नैनो बोलने की ज़रूरत नहीं है. हैविंग फेल्ड टू रिवाइव अ फ्लैगिंग नैनो इन इटसेल्फ इज कंप्लीट. तो ये जो यहाँ पे आफ्टर वर्ड है ना, ये रिडंडेंट है. दैट इज वाई द एरर इज इन पार्ट ए. द रॉक पेंटिंग्स इन करिक्योर कंटेन्स एनालॉगस इंडस script, meaning they resemble the script found in Indus civilization sites of northern India. Now इन दिस देखिए, द रॉक पेंटिंग्स इन करक्यूर कंटेन्स. अगर मैं कंटेन्स बोल रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक पेंटिंग होना चाहिए था. एंड अगर मैं पेंटिंग्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे कंटेन होना चाहिए था. दिस वी कॉल एज द सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो गलत जा रहा है. दैट इज वाई द एरर इज इन पार्ट ए. नेक्स्ट, as the government does not seem to want to protect the site, we plan to put up with warning boards prohibiting tourists from entering without our permission and only with a guide under exceptional circumstances. Again, we plan to put up with warning boards prohibiting tourists. अभी यहाँ पे क्या है? put up with का मतलब है tolerate करना, ठीक है. तो हम क्या tolerate कर रहे हैं टूरिस्ट को? हाँ, पुट अप विद द वार्निंग बोर्ड्स, या हम वार्निंग बोर्ड्स के साथ टॉलरेट कर रहे हैं. सो पुट अप विथ का मतलब है ना इज टॉलरेटिंग.
अगर मुझे यहाँ पे वार्निंग वर्ड्स लगाने हैं, इट शुड हैव सिंपली बीन पुट अप, नॉट पुट अप विथ. सो द एरर इज इन पार्ट बी. He returned home much inspired. No wonder the plan worked. अभी यहाँ पे inspired को बोल्ड किया गया है and the question says that choose the word which is opposite in meaning to the bold word. मतलब inspired इस word का opposite क्या है? Inspire होना मतलब किसी से प्रेरित होना, right? तो inspire का opposite क्या हो जाएगा? Dispirited. Dispirited मतलब आप वहाँ से प्रेरित नहीं हुए, मतलब उसके opposite हो गया. The government is taking measures to augment the country's supply of food. किसी चीज़ को augment करना मतलब उसको increase करना amount में या size में, ओके तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? decrease करना. Word opposite to ostracized. People who hold very unorthodox views are sometimes ostracized. Now यहाँ पे ostracized का मतलब रहता है exclude किए जाते हैं ग्रुप में से, मतलब उनको निकाल दिया जाता है. तो इसी के उल्टा होगा कि जिनको हम फ्रेंड बना लेते हैं. So befriended. Okay. Next, again opposite. They know by his sophomoric remarks that he was still naive in the field. अभी यहाँ पे sophomoric remarks का मतलब क्या है? सोफोमरिक मतलब प्रिटेंशियस, ठीक है, मतलब जो प्रिटेंड करता है, ओके तो इसका ही उल्टा होगा कि जो प्रिटेंड नहीं करता. अभी प्रिटेंशियस के साथ ही सोफोमरिक का ऐसा भी मीनिंग है कि जो जुवेनाइल है, मैच्योर्ड नहीं है, इसीलिए इसका उल्टा मैच्योर भी आ सकता है. तो मैच्योर या फिर एक्सपीरियंस. ओके, चूज द वर्ड अपोजिट. While the reaction to major disasters is dismal, the response to emergencies like accidents is equally sad. Reaction to major disasters is dismal. Dismal मतलब जो बहुत ही दुखद है, मतलब बुरी बात है, तो उसका उल्टा क्या होगा? ये देखो डिप्रेस अपसेट से सेम ही है, कॉम्पिटेंट का कुछ लेना देना नहीं है डिस्मल से. इट विल बी स्माइलिंग, अपोजिट. चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर. गाइज यू शुड रीड दिस क्वेश्चन अच्छे से. हाँ, ऊपर दिया रहेगा अपोजिट या सिमिलर और आप उल्टा मार्क करके आ जाओगे. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while रीडिंग दिस क्वेश्चंस. Public policy in regard to food in main economies around the world has not provided adequate incentive. The response to emergencies like accidents is equally sad. Incentive. Now what is incentive? इंसेंटिव मतलब एनीथिंग दैट मोटिवेट्स और एनकरेज समवन टू डू समथिंग, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा एनकरेजमेंट. The National Disaster Management Agency, set up a short time ago, being a central government agency, has limitations relating to infringing jurisdiction. Infringe करना, infringe करने का मतलब क्या होता है? एक्टिवली किसी लॉ को ब्रेक करना या किसी एग्रीमेंट को ब्रेक करना, मतलब वायोलेशन. दैट इज वाई यहाँ पे आंसर इज वायोलेटिंग. द सेक्रेटरी हैज डेरिसिव एटीट्यूड टूवर्ड्स सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी. डेरिसिव मतलब जो कंटेम्प्ट एक्सप्रेस करता है या रिडिक्यूल करता है, ठीक है, मॉक करना, किसी का मजाक उड़ाना. दैट इज वाई द आंसर विल बी मॉकिंग. Mohini was often teased as corpulent by her friends. Corpulent मतलब fat. His unscrupulous pursuit of wealth finally landed him in prison. मतलब कुछ तो बुरा ही होगा ना, अभी prison में गया, मतलब पॉजिटिव बात तो नहीं दिख रही है हमें इसमें से. तो unscrupulous मतलब क्या? जिसमें कोई moral principles नहीं है, unethical है. So answer is unethical. Now this is about idioms and phrases. Choose the meaning of the idiom or phrase given below. ठीक है. इन फुल स्विंग. इन फुल स्विंग मतलब एकदम कैसा रहता है? एक्टिविटी एकदम जोरों शोरों से रहती है ना, लेवल ऑफ एक्टिविटी इज एट द हाईएस्ट, तभी उसको हम बोलते हैं इन फुल स्विंग. एकदम जोरों शोरों से सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, ओके तो बहुत ही एक्टिव इसका मतलब है. सो द आंसर इज वेरी एक्टिव. टू गिव करेंसी टू. टू गिव करेंसी टू मतलब किसी को पॉपुलर बनाना, ओके सो आंसर इज टू मेक समवन पॉपुलर. प्ले अ जोक ऑन समवन, ये तो बहुत ही ईजी है. प्ले अ जोक मतलब किसी पे मजाक उड़ाना है, किसी को येड़ा बनाना, तो टू ट्रिक समवन विल बी द आंसर. चिकन हार्टेड. चिकन हार्टेड आपने देखा है चिकन को बच्चे कैसे छोटे छोटे एकदम से डर जाते हैं, थोड़ा भी आवाज़ आएगा भागते रहते इधर से उधर, तो डरते हैं वो, ठीक है. सो चिकन हार्टेड मतलब कॉवर्ड, जो डरते हैं.
सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस मतलब जब हम डिसीजन नहीं ले पाते, ठीक है। देखिए दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने हमारे लेक्चर्स में भी करवाया था, सो अच्छी बात है कि कुछ लेक्चर में हमने कुछ इडियम फ्रेजेस किए थे, उसमें से ही अगर एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत ईजी भी हो जाता है, राइट। सो सिटिंग ऑन द फेंस मतलब जब आप डिसीजन नहीं कर पाते ना कि यहाँ पे उड़ी मारूँ या वहाँ पे उड़ी मारूँ, दैट इज़ कॉल्ड सिटिंग ऑन फेंस. So when you avoid making a choice or decision. A nation or person, now this is a one word substitution, idioms खत्म हो गए, one word for the given phrases, okay. A nation or person engaged in war or conflict as recognized by the international law. So ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नेशन को हम क्या बोलते हैं, belligerent. आप एटलीस्ट आपको अगर वर्ड्स पता नहीं रहेंगे सो यू कैन ऑलवेज यू नो गाइज, आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. ये हम हमेशा हमारे स्टूडेंट्स को बताते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक जो है ना वो बहुत यूज़फुल है इंग्लिश के एटलीस्ट सेक्शन में. यहाँ पे आप एलिमिनेशन टेक्निक अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पे एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि इसका मतलब इंटेलिजेंट और थियोलॉजी नहीं है. हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शंस. इससे क्या होता है ना गाइज, हमारे आंसर्स करेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऐसे ही और टेक्निक्स और टिप्स और आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ओवरऑल आपकी, एंड कौन से टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करके आपको अच्छे खासे मार्क्स लाने हैं, इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है गाइज, हाउ टू स्टार्ट योर NCHM-CT JEE प्रिपरेशन. आई विल लिंक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो इन आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू चेक आउट दैट. एंड नॉट जस्ट दैट, दूसरा एक वीडियो है हाउ टू स्कोर 700+ आउट ऑफ 800 स्ट्रैटेजी. उस स्ट्रैटेजी में आपकी प्लानिंग आप क्या कर सकते हो और ऐसे सब टेक्निक्स बताए गए हैं. उस वीडियो की भी लिंक हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. मेक श्योर आप चेकआउट कर लो, तो इट विल हेल्प यू एंड योर फ्रेंड्स. मूविंग अहेड with one word substitution, an examination of tissue removed from a living body to discover the presence, caused or extent of a disease. देखो living का आया तो this is biopsy. Next, the action or offense of speaking sacrilegiously about God or sacred things, profane talk. ओके मतलब कुछ भी अनाप शनाप बकना किसी भी रिलीजन वगैरह के बारे में, उसे हम बोलते हैं ब्लास्फेमी. ये थोड़ा फेमस वर्ड है तो ये आपने सुना होगा. A vigorous campaign for political, social और religious change, मतलब हम जब एकदम से मोर्चा निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, crusade. Next, lasting for a very short time. This also we had already covered in our lectures. Lasting for a very short time is something which is momentary, which is also ephemeral. Yeah? Okay. Next, fill in the blanks with suitable options. A stock limit of 100 quintals for retail traders and 500 quintals for wholesale traders has been. देखो लिमिट है, लिमिट, ठीक है. तो लिमिट हैज़ बीन मैंडेटरी वगैरह कैसे, ये वर्ड्स ना बराबर जाते नहीं है ग्रामेटिकली. ओके यहाँ पे द अप्रोप्रिएट वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट विल बी इम्पोज्ड. ठीक है, इम्पोज किया गया मतलब ऑफिशियली कुछ फोर्स डाला गया, कुछ पनिशमेंट दे दी गई. The challenge of industrial decarbonization looks dash at the first glance. ठीक है, यहाँ पे the word will be daunting. क्यों? क्योंकि daunting का मतलब है कि थोड़ा frightening है, जिसमें आप मतलब confidence नहीं लगता. तो at the first glance दिया है ना, मतलब स्टार्टिंग में चीज़ें सही नहीं लगती. So it will be daunting. The man was dash in financial disputes with several people. मतलब बहुत लोगों के साथ फिनेंशियल डिस्प्यूट में अटका हुआ था, राइट. सो ऐसे अटका हुआ था मतलब वो इजीली उसमें से निकल नहीं पा रहा था, तो इसे हम बोलते हैं मायर्ड. When the caring man saw the dash had no footwear, he offered the man the pair of shoes he wore. मतलब कैरिंग था और उसने देखा कि किसी के पास फुटवेयर नहीं थे, तो यहाँ पे हैम्पर का तो कुछ लेना देना नहीं है. इट विल बी पॉपर. पॉपर मतलब कोई बहुत गरीब होता है ना, उसे हम पॉपर बोलते हैं. ऑल्दो माई प्लान्स रेयरली कम टू फ्यूशन, डैश हैज़ बीन गुड टू मी. मतलब मेरे प्लान्स कभी सक्सेसफुल होते नहीं है, लेकिन सेरेंडिपिटी हैज़ बीन गुड टू मी. व्हाट डज दिस वर्ड मीन? इट मीन्स कि जो इवेंट्स होते हैं ना अचानक से, जो अपने यू नो समटाइम्स थिंग्स वर्क फॉर अस, चीज़ें अपने आप जगह पे लग जाती है, करेक्ट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सेरेंडिपिटी.
ओके, सो द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस इन द कॉन्टेक्स्ट। तो एक सेंटेंस दिया गया, आपको वो देखना है कि बेस्ट वे कौन सा है। ही इज़ बीन राइटिंग अ नॉवेल, देखो यहाँ पे इंग्लिश ही गलत हो जाता है ना, इज़ बीन राइटिंग अ नॉवेल कैसे करेक्ट आएगा। ही वॉज रिटन, अगेन रॉन्ग इंग्लिश, रॉन्ग टेंसेस। हैज़ बीन राइटिंग, हैज़ बीन रिटन, ऑब्वियसली आगे का पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तक ही हमें समझ में आता है कि वो नॉवेल लिख रहा था। ही वॉज रिटन रॉन्ग है, इज़ बीन राइटिंग अ नॉवेल भी रॉन्ग आएगा, ठीक है, क्योंकि आगे जाके क्या दिया है, आगे जाके सिंस दिया है। तो बिकॉज ऑफ दिस वन वर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, विच मीन्स ही हैज़ बीन राइटिंग अ नॉवेल सिंस अक्टूबर। नेक्स्ट, शी कैन काउंट टू 30, काउंट टू 30 होगा गाइज या काउंट टिल 30 होगा, काउंट टू 30, ओके, नॉट काउंट टिल 30, काउंट टिल 30 गलत है। सो ये जो टिल वाला ऑप्शन है वो कैंसिल, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। शी कैन काउंट टू 30 क्विकली देन आई एक्सपेक्टेड, क्विकली देन आई नहीं होता ना, अगर मैं दैन डाल रही हूँ विच मीन्स अ कंपेरेटिव डिग्री, तो क्विकली नहीं आएगा, क्विकर करेक्ट है, मोर क्विकर रॉन्ग है, इट विल ओनली बी क्विकर, क्विकर देन आई एक्सपेक्टेड, ओके। So she can count to 30 quicker than I expected and can write 7 of the square hands. Okay, that's it. Next, as the number of touch points with other countries rise, देखो क्या rise हो रहा है यहाँ पे, number ना of touch points, number rise हो रहा है। तो number अगर rise हो रहा है तो rise कैसे आएगा, rises आएगा, क्योंकि ये है singular, तो अगर ये singular है तो इसे भी singular आना चाहिए, rise is plural, so this is wrong, okay. Had rise is also wrong. As the number of touch points with other country rises, so must our shared understanding of acceptable conduct. This looks good. As the number of touch points with other countries rising, is rising, was rising, कुछ तो होना चाहिए, rising कैसे आएगा, that is why B is the correct answer. Next, the mother bird lays her eggs in a nest and keeps them warm unless, देखो अनलेस है ना एक्शन ओरिएंटेड रहता है एंड अनटिल इज टाइम ओरिएंटेड। द बर्डलिंग्स आर हैच्ड, ठीक है, अभी यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं कि जब तक बर्डलिंग्स हैच नहीं होंगे तब तक, उस समय तक, राइट। सो अनटिल वाले आंसर्स करेक्ट है एंड दो अनलेस वाले आंसर्स मेरे गायब हो गए। अब ये दो अनटिल वालों में क्या गड़बड़ है देखते हैं। द मदर बर्ड लेज हर एग्स इन अ नेस्ट, यहाँ तक कॉमन है, and keeps them warm until the birdlings, अच्छा is या are hatched, birdlings है ना गाइस, birdlings मतलब क्या, plural, तो यहाँ पे is hatched आएगा या are आएगा, plural आएगा, are hatched, so the answer is D. Now let us check the misspelled word, मतलब कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे बलाड की स्पेलिंग गलत है, इट शुड बी BALLADE। नेक्स्ट इज चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड अगेन, इसमें डीकैथलॉन की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ना डीकैथलॉन में ए की ज़रूरत नहीं है, इट शुड ओनली बी DECATHLON। दिस इज़ वेरी इजी, ये तो आपको देखते से ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चनिंग रॉन्ग है, डबल एन की ज़रूरत नहीं है हमें क्वेश्चनिंग में। नेक्स्ट, यस, इसमें क्या गलत है, इसमें पैविलियन गलत है ना, पैविलियन में डबल एल नहीं आता, इट विल बी अ सिंगल एल। एक्विंटेंस परफेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है। अक्वायर में सी की ज़रूरत है, सो द करेक्ट विल बी अक्वायर, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। अभी देखिए गाइस क्या हुआ, अभी तक हमें क्वेश्चंस थे कि मिसस्पेल्ड वर्ड बताइए, मतलब कौन से वर्ड का स्पेलिंग गलत है। अब अचानक क्वेश्चन चेंज हो गया और पूछ रहे हैं कि करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताइए, तो ना इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ इन दिस द करेक्ट स्पेलिंग इज व्हाट, क्वाड्रूप्ड। क्वाड्रूप्ड में क्वाड रेप्ड तो नहीं आएगा, क्वाड्रैप्ड नहीं, इट्स क्वाड्रूप्ड एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वाड्रूप्ड का मीनिंग क्या होता है गाइस, क्वाड्रूप्ड मतलब कोई भी एनिमल जिसको 4 पैर है, ओके। नेक्स्ट, एलिवेट। एलिवेट मतलब कुछ बढ़ाना, एलिवेट करना, तो एलिवेट का स्पेस एलिवेट नहीं होता,
It is ALLEVIATE. एरोगेंस, जो नहीं होना चाहिए हमें. एरोगेंस इज ARROGANCE. Magnificent, what a magnificent building, a wonderful building. Magnificent, MAGNIFICENT is the correct answer. Next, सुपरफ्लुअस. सुपरफ्लुअस मतलब ऐसे ही ऊपर ऊपर, ठीक है. सुपरफ्लुअस का क्या आएगा? सुपर तो नॉर्मल, हमें तो पता है सुपर हर जगह सेम ही है. सुपर 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 सुपरफ्लुअस. बात बोल के देखिए. इन सच क्वेश्चंस ना गाइज, आधा इफ अगर आपको पता है ना वर्ड, तो प्रोनाउंसिएशन से हमें बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं. देखो सुपरफ्लुअस ना, फ्लू FLU आना चाहिए, तो ये वाला भी गलत. फ्लूअस, फ्लॉस बोल रहे हैं क्या? फ्लूअस बोल रहे हैं, सो OUS. दैट इज वाई B is our answer. Starting with reading comprehension, let us quickly read the passage. It is strange that, according to his position in life, an extravagant man is admired or despised. A successful businessman does nothing to increase his popularity by being careful with his money. He is expected to display his success, to have smart car and expensive life, and be lavish with his hospitality. If he is not so, he is considered mean, and his reputation in business may even suffer in consequence. The paradox remains that if he had not been careful with his money in the first place, he would never have achieved his present wealth. Among the two income groups, a different set of value exists. Young clerk who makes his wife a present of a new dress when he hadn't paid his house rent is condemned as extravagant. Carefulness with money to the point of meanness is applauded as a virtue. Nothing in his life is considered more worthy than paying his bills. The ideal wife for such a man separates her housekeeping money into joyless little piles. So much for rent, for food, for the children's shoes. She is able to face the milkman with equanimity and never knows the guilt of buying something she can't really afford. As for myself, I fall into neither of these categories. If I have money to spare, I can be extravagant. But when, as is usually the case, I am hard up, then I am the meanest man imaginable. That was the passage. अभी मैंने ये पैसेज एकदम अच्छे से आपके लिए पढ़ा, बिकॉज ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ. बट आपकी एग्ज़ाम में आप इतने स्लो स्पीड से आराम से पैसेज नहीं पढ़ना अफोर्ड कर सकते. एग्ज़ाम में हमें क्या अप्रोच रखना है? एग्ज़ाम में हमें एकदम क्विकली पैसेज को सिर्फ स्किम करना है. स्किम करना मतलब आपको बस ऊपर ऊपर से पैसेज पढ़ना है, एंड आंसर्स क्या होंगे वो आपको देखने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज. अभी आपको पूरा पैसेज समझा, पैसे के बारे में था, ठीक है. सो एक्सट्रावेगेंस लीड टू पॉवर्टी, ये तो कहीं पे भी नहीं बोला था, तो जो नहीं बोला है उसको बिना मतलब अज्यूम नहीं करना है. मिजरली हैबिट्स ऑफ पुअर, ये भी नहीं है, बस एक दो लाइन थे, तो ना एक दो लाइन में जो दिया गया है दैट इज़ नॉट योर आंसर. ओके. एक्सट्रावेगेंस इन द लाइफ ऑफ द रिच एंड द पुअर. ओके, अभी यहाँ पे दिस वॉज द आंसर. वो बता रहे थे कि पूरा पैसेज कंपैरेटिव है ना गाइस. पूरे पैसेज में सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन ही हुई है कि जो रिच रहते हैं उनके लिए एक्स्ट्रावेगेंस क्या है और पुअर लोगों के लिए एक्स्ट्रावेगेंस क्या है, ये चीज़ों पे बात हुई है. नेक्स्ट, as far as money is concerned, we get the impression that the writer is incapable of saving. ऐसा नहीं है. देखो, कभी कभी उसके पास पैसे होते हैं, कभी कभी नहीं होते. सो इससे हम ये नहीं बोल सकते कि he is incapable. ओके, आगे बढ़ते हैं. इज़ नेवर इंक्लाइन टू बी एक्स्ट्रावेगेंट, ऐसे भी नहीं है. उसने एंड में बोला है ना दैट जब रहते हैं तो आई कैन बी एक्स्ट्रावेगेंट. वुड लाइक टू बी कंसिडर्ड एक्स्ट्रावेगेंट, ऐसा भी नहीं है. डजंट ऑफन हैव एनी मनी टू सेव, ये है क्योंकि यहाँ पे दिया है एज इज़ यूजुअली द केस आई एम हार्ड अप. सो डजंट ऑफन हैव एनी मनी टू सेव. What does the statement she is able to face the milkman with equanimity imply? देखो, कब इक्वानिमिटी से उनको मिल पाती है? जब वो उसके पैसे उस सब चीज़ों के लिए जमा करती है, मतलब गर्व से मिल पाती है, राइट. यहाँ पे इक्वानिमिटी का मतलब है कि वो अपसेट नहीं है,
क्योंकि वो पे कर रही है. So she is not upset as she has been paying the milkman his dues regularly. How does the housewife described by the writer feel when she saves money? जब वो पैसे अभी हमने बात की, उसको अच्छा लगता है, ठीक है. सो ट्रबल्ड तो नहीं रहेगा क्योंकि वो पैसे सेव कर रही है. लाइफ वॉज लेस बर्डनसम, ये सब हम अज्यूम नहीं कर सकते. शी कुड समटाइम्स बी एक्स्ट्रा वैकेंट, ये भी नहीं. शी इज़ कंटेंट बिकॉज शी इज़ सो थ्रिफ्टली. चलिए नेक्स्ट पैसेज. आवर अवेयरनेस ऑफ टाइम हैज़ रीच्ड सच अ पिच but our travels take us into some corner of the world where people are not interested in minutes and seconds. The unpunctuality of the Orient, for example, is appalling to those who come freshly from a land of fixed meal times and regular train services. For a modern American or Englishman, waiting is a psychological torture. An Indian accepts the blank hours with resignation, even with satisfaction. He has not lost the fine art of doing nothing. Our notion of time as a collection of minutes, each of which must be filled with some business or amusement, is wholly alien to the Greek. For the man who lives in a pre-industrial world, time moves at a slow and easy pace, for the good reason that he has not been made conscious of the existence of minutes. The Orient in the passage refers to what? Orient, the unpunctuality of the Orient is appalling. अभी यहाँ पे Orient मतलब देखो, इंग्लैंड एंड अमेरिकन्स की तो हम बात नहीं कर रहे ऑब्वियसली. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इंग्लिशमैन एंड अमेरिकन्स जो है उनको कम अगर टाइम बर्बाद हो रहा है तो उनके लिए वो टॉर्चर होता है. तो ऑब्वियसली उनकी बात नहीं चल रही है. अगेन कॉमन है. द आंसर इज चाइना एंड जापान. According to the author, the Orientals are very punctual. नहीं, अभी हमने देखा ना कि वो लोग हैं जो बर्बाद कर रहे हैं टाइम, अनपंक्चुअल है. तो ये गलत है. ओके नेक्स्ट. द अमेरिकन्स और द इंग्लिशमैन आर पंक्चुअल, ये करेक्ट है. अ पर्सन हु बिलोंग्स टू प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, कौन? ग्रीक. उनको नहीं पता कि टाइम कितना फास्ट जाता है, उनके लिए टाइम बहुत स्लोली जाता है, राइट. सो द आंसर विल बी डज नॉट केयर अबाउट ईच मिनट. ये लास्ट में दिया है. इज़ नॉट मेड कॉन्शियस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ मिनट्स. द ओरिएंटल्स आर एलियन टू. ओरिएंटल्स मतलब ये चाइना जापान जो अनपंक्चुअल है, वो किस चीज़ के लिए एलियन है? द नोशन ऑफ टाइम एज अ कलेक्शन ऑफ मिनट्स, क्योंकि वो टाइम बर्बाद करते हैं, राइट. दैट इज वाई. व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? ऑल अबाउट टाइम, राइट. अवेयरनेस ऑफ टाइम इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड. देखो इन सब चीज़ों की भी ना बात की है. द ग्रीक कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, ठीक है. लेकिन ये सब बाई प्रोडक्ट्स है, मतलब ये सब वो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसके बारे में पैसेज में बात तो की गई, बट दैट वॉज नॉट द होल एम ऑफ द पैसेज. Okay, let us read the next passage. In an effort to produce the largest, fastest and the most luxurious ship afloat, the British built the SS Titanic. It was so superior to anything else on the seas that it would be dubbed unsinkable. So sure of this were the owners that they provided only 20 lifeboats and rafts, less than one half the number needed for the 2,227 passengers on board. Many passengers were aboard the night it rammed on iceberg, only 2 days at sea and more than halfway between England and its New York destination. Because the luxury liner was traveling so fast, it was impossible to avoid the ghostly looking iceberg. An unextinguished fire also contributed to the ship's submersion. Panic increased the number of casualties as people jumped into the icy water or fought to be among the few to board the lifeboats. 4 hours after the mishap, another ship, the Carpathia, rescued 705 survivors. The infamous SS Titanic has enjoyed only 2 days of sailing glory on its maiden voyage in 1912 before plunging into 12,000 feet of water near the coast of Newfoundland where it lies today. Now that we have read the passage, what does this passage convey?
तो एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। द एसएस टाइटैनिक प्रूव्ड इटसेल्फ द मोस्ट सीवर्दी वेसल इन 1912। इज इट ऐसा दिया था क्या? नहीं, यहाँ पे तो हम इसके डूबने की बात कर रहे हैं। सो अटेम्प्ट्स टू रेस्क्यू टाइटैनिक वर नॉट सक्सेसफुल, ये भी नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस बाय द बिल्डर्स एंड द ओनर्स वॉज ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से उसके डाउनफॉल की ही बात हो रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्लोरी ऑफ द टाइटैनिक, राइट। मेड इन वोएज का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है? मेड इन वोएज मतलब यहाँ पे मेड इन वोएज कहाँ पे दिया गया है? लेट अस क्विकली फाइंड। मेडन वॉयज इज क्लोजेस्ट टू मीनिंग इन, तो ये मेडन वॉयज का मीनिंग क्या है? लेट अस क्विकली फाइंड द वर्ड। यहाँ पे है द इनफेमस टाइटैनिक हैड एंजॉयड ओनली 2 days ऑफ सेलिंग ग्लोरी ऑन इट्स मेडन वॉयज। अभी मतलब पहले ही दिन पे ऐसा हो गया था, तो इट मस्ट बी समथिंग विच इज द फर्स्ट डे, नॉट फाइनल वॉयज। फाइनल की तो बात नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे इनॉग्रल की बात हो रही है। चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। द कारपेथिया रेस्क्यूड द सर्वाइवर्स, ये तो यहाँ पे दिया गया है, तो दिस इज ट्रू। टाइटैनिक सैंक नियर न्यू फाउंड लैंड, दिस इज ऑल्सो गिवन। टाइटैनिक वॉज द फास्टेस्ट शिप अफ्लोट इन 1912, येस, दैट इज ऑल्सो मैंशनड इन द पैसेज। ओनली अ थर्ड ऑफ द अबोर्ड पेरिश्ड, ये कहीं पे भी स्टैट्स दिए नहीं है हमें, दैट इज वाई दिस इज नॉट ट्रू। लेट अस रीड द नेक्स्ट पैसेज। गाइज देखिए, ये जब पैसेजेस आते हैं, देर आर 2 approaches. You can either first read the questions and then go to the passage, जब आपको पता होता है कि ना एग्जैक्टली आप क्या ढूंढ रहे हो, या फिर आप ये भी अप्रोच ले सकते हो कि आप पहले पैसेज अच्छी तरीके से पढ़ लो, तो क्वेश्चंस ना एकदम ही ईजी लगेंगे आपको, बिकॉज यू हैव मेड योर सेल्फ वेल एक्वेंटेड विद द पैसेज। नाउ बिकॉज आपके एग्ज़ाम में पैसेजेस थोड़े से छोटे आते हैं, दे आर नॉट दैट डिफ़िकल्ट, okay, the level is not very difficult, it is easy to moderate, so you can afford to read the passage first, but understand it well, comprehend the passage well, and then go to the questions. With that, let us start with our last passage. The printing press has made knowledge available to the vast multitude of people, but what kind of knowledge is it? Is it any permanent character? Books have become common, and when we say the books like the Sexton Blake series sell like hot cakes, we have an index of the nature of knowledge which is a typical person in a vast multitude seeks. Let me tell you of an incident that took place in America a few years ago. An American publisher printed 1 million copies of the works of Charles Dickens in the hope that he could sell easily on the name of the author. But to his disappointment, not even the widest publicity and advertisement could enable him to sell the book. Being sorely tired, he hit on a plan. He tore off the cover pages, substituted the covers containing sensational headings of the title, and again advertised the new books. In a week, all the books were sold. We are not concerned here with the moral of the bookseller's action. What we have to note is that only books of a sensational type are really sought for you by the ordinary folk who have a great aversion to serious study. So you will see the grand argument that the printing press has made knowledge available even to the masses is certainly fallacious and quite misleading. To put it correctly, it has created a taste for a low order of books. So that was all about the passage. Now let us understand what the questions are. What does the author's contention make us feel? यहाँ पे ऑथर क्या बात कर रहा है? ऑथर बोल रहा है कि बुक्स के कवर पेजेस बदलने से आजकल लोगों को सेंसेशनली बुक्स पढ़नी है, अच्छी बुक्स नहीं पढ़नी है, तो प्रिंटिंग प्रेस की जो ज़्यादा वाहवाही हुई है वैसा कुछ नहीं है। सो ही आर्ग्यूज़ कन्विंसिंगली, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे स्टिकलर की तरह एक ही पॉइंट के पीछे लगा है, एंड उसने अच्छे खासे यहाँ पे स्टोरी बता दी, एग्जाम्पल्स दे दिए, सो ही इज़ आर्ग्यूइंग कन्विंसिंगली। व्हाट इज़ द मेन कंटेंशन ऑफ द पैसेज? नाउ यहाँ पे पैसेज क्या बोल रहा है? पॉपुलैरिटी ऑफ प्रिंटिंग प्रेस नहीं, हमने यहाँ पे पॉजिटिव नोट पे ये पैसेज देखो। ऑलवेज अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द पैसेज. द पैसेज टोन इज नॉट योर वेरी positive, right? So to bring out the evil impacts of the printing press is the correct answer. The American publisher had chosen the works of Charles Dickens to, क्यों उसने ये चूज़ किया था वर्क? ऑब्वियसली उसको पैसे बनाने थे. Why are Sexton Blake series big sellers? यहाँ पे
ये क्यों बिग सेलर्स है इसके बारे में उन्होंने आगे बताया है, क्योंकि वो सेंसेशनल है, क्योंकि सिर्फ सेंसेशनल चीज़ें यहाँ पे बिकती है। So guys, that was all about this 2021 NCHM CT JEE paper. I hope you have understood the shortcut tricks to solve this paper, and also जो toppers का approach होता है कि कैसे किसी passage को approach करना है या paper को कैसे समझ के solve करना है, वो हमने इस पूरे वीडियो में डिस्कस किया है, एंड हमने सब क्वेश्चंस भी अच्छी तरीके से डिटेल में सॉल्व किए हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल टू यू, एंड इफ़ इट वॉज, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो कि NCHM CT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट वी कैन हेल्प मैक्सिमम स्टूडेंट्स। Guys, if you're preparing for your hotel management exams, then you can contact us. We provide live classes, classroom coaching, books, and much more. For online and live coaching, you can contact us on 8828581455, and we also provide classroom coaching at Borivali, Vasai and Dadar. You can visit our centers or call us on this number. You can get more information about us on our website, and make sure that you stay connected with us. Subscribe to our YouTube channel, follow us, like, share on Facebook, follow us on Instagram, and join our Telegram channel. All the links are in the description below, and also the links जो हमने डिस्कस किए थे ना, जिसमें आपको NCHM की स्ट्रैटेजी बताई जाती है कि आप कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर 700 प्लस का स्कोर आप कैसे ला सकते हैं। ये जो वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाए हैं, इसकी भी लिंक्स मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। सो मेक श्योर यू चेक ऑल ऑफ दैट। दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड गाइज। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।